everyone. Today we are gathered here to discuss the role of police and administration in managing the social situations created due to the incidents of public protests and other law and order issues. So we have with us today Mr. B.L. Bohra, IPS 1967 batch, retired in 2004. He served in Delhi police in the beginning of his career and later in almost all the paramilitary forces. He served in Jammu and Kashmir, Punjab and Northeast during the difficult days. He was DGP Manipur, DGP Tripura, DG SSB and DG Civil Defense. Hello everyone. Today we are gathered here to discuss the role of police and administration in managing the social situations created due to the incidents of public protests and other law and order issues. So we have with us today Mr. B.L. Bohra, IPS 1967 batch, retired in 2004. He served in Delhi police in the beginning of his career and later in almost all the paramilitary forces. He served in Jammu and Kashmir, Punjab and Northeast during the difficult days. He was DGP Manipur, DGP Tripura, DG SSB and DG Civil Defense with Government of India. After retirement, have been very busy with various things. Also, we have with us today Mr. Sunil Dang, who is editor-in-chief of the internationally acclaimed magazine The Day After, a journalist of repute and a political commentator with lot of awards in his kitty. We also have Wing Commander Sushil Kumar, who is a strategic thinker and a current affairs analyst. So I welcome you all on our channel today, and I'm thankful that you are spending your precious time with us. So I would request Mr. Sushil Kumar to take it forward from here. Thank you, sir. So may I request Bohra sir to take the lead and enlighten us with his views on what is happening in and around the Indian district headquarters, and especially in the state of Uttar Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu, which have been in news due to certain unrest. I'll not name the incident in detail, sir. Well, I think you are referring to the Hathras incident, which is in limelight these days. Now, as you know, the incident, a young girl, about 19-year-old, she was killed in the fields. And earlier allegation was that she has been injured grievously by the people. And later there were allegations that there was a rape also. And then she was brought to Delhi for treatment, and where she died. And the police cremated her body at midnight, which was a very bad thing to do. Even though I'm a policeman, I feel very bad the way police behaved. And then the investigation so far has been shrouded in kind of mystery, because when they stopped the media from going in, it looked as if the police is wanting to hide something from them. I think this is again something very, very wrong. Now, let me say that these incidents, such crimes, including rape, unfortunately, have been happening in India throughout since independence, even during the British Raj. And they happen across India. Earlier, there was not so much of a media like this, so people didn't know much. Today, of course, people know more, and people are also now willing to come forward and report about these cases. Now, talking of this particular case, I think that police should have shown more transparency in registering, investigating, allowing the media, and giving the body to the family of the victims. For that they didn't do. Now, UP has been in bad news for these reasons basically. I mean, these cases have been happening, rape and other cases also. And of course, as Wing Commander Sushil said, they've been happening across India, as Tamil Nadu, where this was infamous case of custodial death. Police has been known for custodial death. Karnataka and Hyderabad now, where the police killed in a so-called encounter the rapists. That was bad, because that is not the job of the police. So I think that in a nutshell, the crimes are regularly taking place, and police can't stop the crime. Let us be very clear. I mean, if a crime takes place in a village
Police can't stop that, but police certainly can quickly register a case, investigate the case. So things are bad, the image of the police is bad, and a lot needs to be done. Now, why it is happening so, we can discuss that later on maybe. At this stage, I'd like to bring in Mr. Dang, sir, and to have a political perspective about the whole incident. Sir, coming from the fourth pillar of the state, what do you think has been the role of sir, media, television channels of trying to play politics with the news which have come up as of today, the new developments which have come up, certain inputs, IB inputs have come up, other things have come up. How do you see, sir, what should be the gold standard for the media behavior in certain kind of issues like this? पहले तो आप लोगों का मैं नमस्कार करता हूं एंड आई पर्सनली फील वोरा साहब ने जो कहा और सुशील जी ने कहा इज अ वेरी इम्पोर्टेंट. पहले ही समझना होगा कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द पीपल फ्रॉम द पुलिस और फ्रॉम द अदर साइड. आई पर्सनली फील पीपल हैव ए अनरेस्ट in a police force also and in our side also. We have an unrest because लोगों को हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं. और जहां तक पुलिस का सवाल है, मैं समझता हूं ब्रिटिश टाइम से ही पुलिस उन लोगों के हाथ में रही जो कि राजदंड रखते थे. मीन्स राजा हमेशा चाहता था कि जो भी पुलिस हो वो मेरे अंडर होनी चाहिए. ब्रिटिश जो पुलिस बना के गए थे, वोरा साहब मेरी बात से एग्री करेंगे शायद, उसका रूप केवल वर्दी में या रैंक में इंटेलिजेंट प्रोफेशनलों में तो नजर में आता है, लेकिन अदरवाइज बिहेवियर जो है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर, कोई एक आईपीएस बनकर आता है, शुरू में उसके अंदर बहुत जज्बा होता है. वो जज्बा इस रूप में होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि नया खून होता है, कुछ देखा नहीं होता. जैसे जैसे उसके रैंक बढ़ते हैं, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंस लोगों से इंटीमेट होने के आते हैं, इस मेरे पास में एक रॉब है, मेरे पास दंड है और वो लीगल है. जैसे होता है ना, दो तरह के हैकर्स होते हैं अमेरिका में, दो तरह के हैकर्स होते हैं. मैंने देखा था, एक वो जो इलीगली आपका पैसा चोरी कर लेते हैं, और कुछ ऐसे एथिक हैकर्स होते हैं जो आपका चोरी होते हुए पैसे को रोकते हैं कि हाउ और कहाँ से सेंध लग रही है आपकी सॉफ्टवेयर में. सेम वे इन द पुलिस, जो इस तरह के प्रोफेशनली आते हैं और उन पर प्रेशर बनता है, तो उनको नजर आने लगता है कि अगर मैं राजा के साथ मिल जाऊं एंड आई स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम हिम, और मैं उसके क्लोज हो जाऊं, दो चार अगर बुरे काम भी कर दिए या उसके पर्सनल काम भी कर दिए, उससे मेरे पे इफेक्ट क्या पड़ता है, समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है. पर आप देखिए, निर्भया के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान हिल गया था. ऑल दी यंगस्टर गर्ल्स ऑफ 16 to 25 सड़कों पे थी, माँ बाप रोक रहे थे. इवन तो मैंने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं पता कल को मेरे साथ हो गया तो क्या होगा. वी हैव टू बी यूनाइट. हमें एक ऐसा स्टेंजियन लॉ लेकर आना है जिससे कि रेपिस्ट की आत्मा कांप जाए और वो रेप करने से पहले सोचे कि मेरे साथ क्या हो सकता है. पर मैं देख रहा हूँ निर्भया के होने के बाद में क्या रेप रुक गए, क्या पुलिस उसको रोक पा रही है. इसमें समाज का भी है हाथ. मैं पुलिस पे अकेला आरोप नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों के बीच की एक कड़ी हूँ. और आई पर्सनली फील, वोरा साहब एग्री करेंगे मेरे से, कि पुलिस की रिफॉर्म के लिए ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने या सभ्य समाज ने प्रेशर नहीं बनाया. धर्मवीर के ऊपर धर्मवीर कमीशन भी बना, रिबेरो साहब का जो कि सुपर कॉप कहलाते थे उनका भी कमीशन बना, रमैया साहब का भी बना जो कि होम सेक्रेटरी होते थे, फिर वोरा साहब का भी बना जो कि होम सेक्रेटरी रहे.
उन सब के सोली जी का रहा, जो सोली स्वराब जी हमारे बहुत बड़े लॉ के जानकार हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, पर उन सबकी दी हुई रिपोर्ट कहाँ है? प्रश्न ये है आज। क्या हुआ है? रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुई, इवन दो जब सोशल सोसाइटी ने प्रेशर बनाना शुरू किया 97 मुझे याद आता है, तो मेरे को मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप दिस, और जो प्ली थी गवर्नमेंट की, उस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने सब्सक्राइब कर लिया। वरना वोरा कमेटी की 100 पेज की रिपोर्ट थी, उसमें से सिर्फ 12 या 10 पेज ही बाहर आए, वो भी लिमिटेड, ताकि लोग शांत हो जाए। अभी तक वो तिजोरी में है ना। वोरा साहब बताते हैं कि उसमें उन्होंने क्या लिखा था, क्योंकि उन पर भी एक लीगल बाइंडेशन होगी। This brings to a very important question, डांग साहब। मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने मुद्दा उठा दिया है वो पुलिस रिफॉर्म का है, जिसपे बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे केस, बहुत सारे जजमेंट्स आपने रेफर किए, हमारे ज्ञान को बढ़ाया। एक सबसे लेटेस्ट 2006 का प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस है, इसके भी मैं लास्ट पे आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग दैट। जी जी। लेकिन अचानक से चर्चा जब शुरू हुई कि जब 2 एक्स डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया पीआईएल के साथ, कहते हैं कि कोई भी डिसीजन होने के बाद में कोर्ट का वो केस खत्म हो जाता है, पर दिस इज वन ऑफ द रेयर केस जो आज तक कभी बंद नहीं हुआ। उसके अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट होते रहते हैं, कोई ना कोई उसको ज्वाइन करता रहता है, कोई ना कोई नई वहां से रिपोर्ट के ऊपर कोई ना कोई नए ऑर्डर्स आते रहते हैं। इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार तो मैंने अपने जहन में, जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी और मैं क्राइम रिपोर्टर था शुरू में, तो यूपी के अंदर स्ट्राइक हो गई थी पुलिस के अंदर। उसको रोकने के लिए एचएन बहुगुणा को आगे लाया गया, मिसेस गांधी उस समय जिंदा थी, और उस टाइम थोड़ा बहुत हुआ कि पुलिस की वर्दी ये होगी, उसकी पगार थोड़ी बढ़ जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की पावर ये हो जाएगी। लेकिन आपको देखना होगा ब्रिटिश राज में भी, और मैंने यूरोप में भी देखा, और अमेरिका में मैडम आपने भी देखा होगा कि अधिकतर कॉप उन्हीं टाउन्स में रहते हैं, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, बिकॉज दे नो द बिहेवियर ऑफ द पीपल, दे नो कि वहां के रेजिडेंट कौन कैसा है, तो उसको वो केस सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सेम वे मैं चाह रहा हूं कि पुलिस को कुछ ताकतें मिलनी चाहिए, वो अशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन जब ये मान लेता है कि ये मेरी प्रजा है और ये दंड मेरा है, तो वो कोई भी गलत काम करने में डरता नहीं है। जैसा कि वोरा साहब ने अभी कहा, हाथरस केस को ही ले लीजिए। हाथरस केस में क्या हुआ? उस लड़की के साथ में रेप हुआ, उसने डाइंग अपनी डिक्लेरेशन दी, उसके बाद में अब प्रेशर बन रहा है प्रशासन से भी, प्रेशर बन रहा है वहां के बड़े लोगों से भी, प्रेशर बन रहा है कार्यपालिका से भी। अब जब सारे ही लोग इकट्ठे मिल जाएंगे तो एक आम आदमी कहाँ तक खड़ा रह पाएगा? आई एम क्वेश्चनिंग दिस टू वोरा साहब। क्या उसको मॉरल कहीं से मिलना चाहिए? रिक्वेस्टिंग वोरा सर टू एनलाइटन अस। हमें सर आप पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में जो आपके ख्यालात हैं और आपकी जो सजेशंस हैं, कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ तक और कब तक इसकी हम उम्मीद करें कि इन रिफॉर्म्स को कार्यान्वित रूप में हम देख पाएंगे? क्योंकि मैं भी आज उम्र के उस कगार पे खड़ा हूं कि जब से होश संभाला ये सुन रहा हूं कि भारतवर्ष में अब पुलिस रिफॉर्म होगा, अब हम ब्रिटिश पुलिस से इंडियन पुलिस बनेंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ सर। तो ये आपसे जानना चाहूंगा सर, कहाँ चूक हो गई या कहाँ देर है? आप सही कह रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है, लेकिन इसकी मैं चर्चा थोड़ी देर बाद करता हूं। पहले मैं कुछ और फैक्टर्स को जरा मेंशन करना चाहता हूं। हमारे देश में लोगों का जो एजुकेशन की वजह से समझ लीजिए जो माइंडसेट है वो नहीं बदला है। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इज नॉट देयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट फैक्टर्स आर नॉट गोइंग टू गो अवे एनीवेयर। कानून हर चीज का पास कर लीजिए, रेप का कानून जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सख्त कानून बना लीजिए, कानून तो है अपनी जगह, लेकिन ये कहीं जाने वाला नहीं। इसमें भी यही था कि वो दलित लड़की थी, तो दूसरे लोग वो अपर कास्ट के थे, उस विलेज के थे,
और रहा पॉलिटिशियंस का, अब कोई पॉलिटिशियन पुलिस का कंट्रोल जो है वो नहीं छोड़ना चाहता। अंग्रेजों ने भी नहीं छोड़ा, हमने भी नहीं छोड़ा। अब डांग साहब ने कहा कि पुलिस वाले उनके साथ मिल जाते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, सही है, लेकिन वो कई लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि पुलिस वालों की गर्दन जो है वो पॉलिटिशियंस के हाथ है। अब वो उसको भर्ती भी वो करता है, ट्रांसफर भी वो करता है, सस्पेंड भी वो करता है। तो पुलिस वाला कई बार ये सोचता है कि भाई अगर मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो लेट मी जॉइन हैंड्स विद हिम। दैट इज द प्रॉब्लम। और मीडिया का एक जिक्र करना चाहूंगा, इतना मीडिया था नहीं पहले, अब काफी हो गया है। और अब पर मुझे लगता है कि अब जरूरत से ज्यादा भी मुझे माफ करेंगे, जरूरत से ज्यादा टीआरपी के चक्कर में, और 2 महीने से लगे दिन रात, अब इसके पीछे लगे दिन रात, तो थोड़ा वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे हिसाब से आई है। आई मे बी रॉन्ग, मिस्टर डांग कैन करेक्ट मी। नाउ लेट मी गो बैक टू द पुलिस रिफॉर्म्स। आज भी हमारे देश में 1861 का 150 साल पुराना समझ लीजिए पुलिस एक्ट जो है वो लागू। अकॉर्डिंग टू दैट police is accountable to the executive. That means to the government, that means to the politicians. Right? वो नहीं बदला हमने, नेता वगैरह थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे याद आ, उन्होंने कहा कि देखिए वो रसा वैसा है, शुरू में तो ठीक था, बाद में पॉलिटिशियंस ने क्रिमिनल्स की मदद लेनी शुरू कर दी इलेक्शन लड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद क्रिमिनल्स को अकल आई कि अब इनकी मदद क्यों कर रहे हैं, हम ही आगे चलते हैं। The result is today 40% roughly of politicians, you know that, in legislatures, members of parliament, MLAs and all, about 40% of those people, इन्होंने कानून पास करना है। और ये कभी ये कानून पास नहीं करेंगे कि पुलिस को छोड़ा जाए। क्रिमिनल्स को तो कईयों को वीआईपी सिक्योरिटी मिली हुई, आप जानते हैं, इट इज एन ऑल इन पब्लिक डोमेन। मेरा कहना यह है कि ये एक तो ये बड़ा जरूरी है कि वो हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। इट वाज ओनली व्हाइट वॉश, दे पास्ड लॉज बट इट वाज ओनली व्हाइट वॉश। नाउ देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो internally. To say that police is not to be blamed itself at all is also wrong. Police leadership is also, and I think they need to pull up their socks. Now thirdly, दुनिया भर में कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि 400 पुलिसमैन होने चाहिए, हमारे यहाँ 140 है, उसको भी छोड़िए। जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, देयर आर 33% ऑफ वैकेंसीज इन द सैंक्शन स्ट्रेंथ। यूपी हैज 50% ऑफ वैकेंसीज। रिक्रूटमेंट की बात लीजिए तो मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने अपनी कास्ट के बंदे भर्ती कर लिए, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने भर्ती कर लिए, डांग साहब हैं, प्रीति है, जिन्होंने हुआ उसने कर लिया, भर्ती कर लिए, और करप्शन भी हुई उसमें। अब यू रिक्रूट ए पर्सन taking money from him with a particular mindset who is going to serve in the society for 30-40 years. What do you expect from him? इमेज तो खराब होगी, काम तो खराब होगा। आज भी ऐसे थाने डांग साहब हैरान होंगे जिनके पास प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, टेलीफोन तक नहीं है, वायरलेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, टेलीफोन भी नहीं, गाड़ियां नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितनी, आज हम लोग वी आर यूजिंग दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उनको पता ही नहीं कि ये भी कुछ चीज है, किसको कैसे यूज करें। एंड ऑल क्रिमिनल्स आर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स, उनके पास कुछ नहीं है। अभी सर अभी तक आपके पास पैन इंडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप नहीं हो पाया है, सारे रिकॉर्ड्स नहीं कंप्यूटराइज्ड वो है पोलनेट करके एक है, पोलनेट करके है, काफी कुछ काम हुआ है, बट पॉइंट इज जितना होना चाहिए और जिस स्पीड से होना चाहिए, दैट इज नॉट हैपनिंग। And criminal can use the latest technology, the weapons, the vehicles of the latest designs and all in no time. And to us, it takes, you know that, decades to get something. So I think these are all factors responsible. So that is why the police image is bad. It was bad. When I joined, I served for about 40 years in the police.
It continues to be bad. I'm sorry to say it will continue to be bad till all these things are done. सर यहाँ पे मैं एक सजेशन अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, पुलिस फोर्सेस के साथ हम लोग बहुत मिलकर काम किए हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों की कार्रवाई पे भी हम लोगों के ऊपर खुद पुलिस का मुकदमा चला है। हम सैनिकों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी कारण से रॉन्ग कन्फाइनमेंट। यहाँ पे सर मैं विदेश से जब हम लोग इतने चीजों को कॉपी कर रहे हैं या प्रेरित हो रहे हैं, एक मुझे विदेश के पुलिसिंग सिस्टम में सर बहुत अच्छी बात लगी, वहां पे से जो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमिटी है सर या अथॉरिटी है, वो अगर सेटअप हो जाए हिंदुस्तान में, तो रिफॉर्म अगर ना भी हो तो पुलिस की एग्जिस्टिंग फोर्स पे एक दबाव बनेगा या एक उनको गाइडलाइन मिलेगी या उनको एक बंधन बनेगा। इस पे सर क्यों नहीं कभी कोई लोग सोचते हैं कि जैसे आप रिटायर्ड हैं, आप उसमें मेंबर रहे, कोई जज मेंबर रहे, डांगे साहब जैसे कोई पत्रकार मेंबर रहे, ये मैं चाह रहा था सर हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा है सर? One of the directions of the Supreme Court. No political party, no state since independence. Okay, sir. They want to do it. आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, आधे से ज्यादा तो यहाँ वो लोग हैं जिनके लिए रोजी रोटी ह्यूमन राइट्स। पंजाब में इतना बवाल हुआ, तब तक ये कहीं सब सोए हुए थे। जब सॉर्ट आउट हो गया, नेचुरली किलिंग्स भी हुई, इंसर्जेंसी वगैरह में होती है। आई वाज इन त्रिपुरा, यू नो, इनकाउंटर्स में ये सब चलता है। Yes. तो इनकी रोजी रोटी है। Then they come up in big numbers. Talking of why police registers cases against army and air force and all, तो वही बात फिर घूम फिर के आती है कि a policeman is under politician is under pressure, उसको कुछ करना है, वो कह देता है कि साहब आप केस तो रजिस्टर करो कम से कम। Correct. This is what is happening. But having said that, I'm not absolving the police at all of their responsibility. I think they also owe a lot of explanation, whether in Hathras or anywhere else. But point is, it's a complete package. Everybody has to do its bit, led by the politicians. And I'm afraid, sorry being pessimistic, वो अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता होराइजन पे है। Sir, requesting Dang Sahab to now give his closing comments on this discussion for last about 20-25 minutes. Especially about the media, Dang Sahab, I'll also request कि आप तो एक्सपर्ट हैं उस मामले में। सर ऐसा है कि पुलिस पर पड़ने वाला राजनीतिक दबाव जो है, वो सब इस बात का शुरुआत है। और हर व्यक्ति की एक मानवीय पक्ष होता है, पुलिस का भी एक मानवीय पक्ष है कि उसको नौकरी करनी है। यही चीज उसके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव की तरह आती है, जिससे अगर वो मानसिक रूप से उसको झेल जाता है तो वो आगे निकल जाता है, वरना वो दबाव में आने के बाद परिस्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। जो हमने इस पैंडेमिक में भी देखा, जहां पैंडेमिक में उनकी तारीफ हो रही थी कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, अचानक ये केसेस आने शुरू हो गए तो पेंडुलम में एक तरफ नहीं रुका, दूसरी तरफ। क्या नहीं, इंटरप्ट जस्ट अ मिनट साहब, ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी पुलिस खराब है, सारे पुलिसमैन खराब है, ऐसा नहीं है। मैनी गुड पुलिसमैन हु डू लॉट ऑफ वर्क। और ये जो इसमें जो पैंडेमिक में जो आप बात कर रहे हैं, अब ये भी हुआ कि यू हैव टू एनफोर्स द लॉकडाउन। अब जब आप वो करेंगे तो परेशानी होगी, और ये इंसिडेंट्स हो गए। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस चाहे तो इन्फोर्स कर सकती है, उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें मादा है काम करने का। उसमें ऐसा नहीं है कि वो लोग लेथार्जिक हैं। वो लोग 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे और कई बार मैंने देखा 18 घंटे भी ड्यूटी करते हैं। जब दफा 144 लगी हो या शहर में कोई दंगा हो जाए, जैसे दिल्ली में अभी पीछे हो गया था, पुलिस वालों को मैंने देखा 18-18 घंटे काम करते हुए। अब ये आप सोच के देखो कि जहां पर 732 लोगों को पुलिस कर्मी होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो है वो कहता है कि 450 लोगों के ऊपर एक होना चाहिए, हमारे यहाँ पर 732 के ऊपर है। तो यानी कि हम डबल प्रेशर तो पहले ही लेके चल रहे हैं। दूसरा, अब लगातार जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह हम ले नहीं रहे हैं, और ले लेते हैं तो कोई ना कोई हमारी मीडिया में से खबर छप जाती है कि ये ले दे के काम हुआ है और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है।
साहब देश में बड़ी जगह पुलिस वाले आज भी 18 घंटे काम करते हैं। बहुत स्टेट्स में बुरा हाल है। सब देखिए, जब आप आईपीएस आए थे, पीएल वोरा साहब आईपीएस ऑफिसर नए नए आए थे, ही ज्वाइन, तो इन्होंने सुना था कि पुलिस रिफॉर्म हो रहा है। आज उनको रिटायर हुए काफी साल हो गए, काफी किताबें लिख चुके हैं, लेकिन वो पुलिस का जो रिफॉर्म है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। वो सिर्फ पूछ रहा है मैं आऊं, और पॉलिटिशियन कह रहा है नो 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 नो। तो कहने का मतलब आप अभी जो गाइडलाइंस है, सर समय की सीमा है, इसलिए मैं सर अब आप लोगों को रोकना चाहूंगा सर। I have to close it. I'm left with only 3 minutes now, sir. So I have to close it for the students and the people who are viewing our channel. एक समेशन आप दोनों के सर अच्छे ख्यालात मिले, काफी अच्छा इनपुट दिया आप लोगों ने सर, और सारी हमारी चर्चा 2 चीजों पे निकल के आई कि भारत का है, इट हैज टू बी डन इमीडिएटली, नहीं तो ये स्थिति किसी एक मौके के बाद संभालने लायक नहीं रहेगी, और हर समय आपको किसी समय या तो जो कि एक नहीं है हमारे साहब। एक मिनट, एक ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा जरूरी है कि पुलिस शुड बी गुड, तो इसलिए भी जी, क्योंकि दैट इज द ओनली मैकेनिज्म फॉर द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। तो हमें पुलिस को तो सब रखना ही है, ऐसी चीज है जिसके बिना कोई सोसाइटी या गवर्नमेंट नहीं चल सकती। यस प्लीज, सो थैंक यू वेरी मच। बिफोर यू क्लोज, दैट इज अ क्लोजिंग। ये जो आज तक मानी नहीं गई, वोरा साहब ने भी कही, जैसे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस बिना जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच करे, थाना प्रभारी लेके पुलिस प्रमुख का एक के लिए कार्यविधि मिल जाए, जैसे कि होम सेक्रेटरी को मिलती है। नया पुलिस अधिनियम लागू कर दिया जाए, अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग पुलिस व्यवस्था की जाए। ये कुछ एक प्रमुख गाइडलाइंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जारी की हैं, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे आका को लगता है कि अगर ये चीजें हमने ऑटोनॉमस बनाकर इन लोगों को दे दी या निश्चित कर दिया आप 2 साल रहेंगे, तो फिर वो सुन थोड़ी आपकी, वो तो फिर लॉ की सुनेगा और वो जस्टिस की सुनेगा। तो दोनों की जब सुनेगा और जनता की सुनेगा, तो फिर वो आपके तो किसी काम का रहा नहीं। ये सर एयरफोर्स की हमारी टेक्नोलॉजी है, एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी में एक वर्ड है सर, कैच 22। ये कैच 22 सिचुएशन है सर। रिफॉर्म्स कब होंगे और जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये है सर, हम इसी रोल में फंसे हुए हैं। उम्मीद है कि आज की परिस्थिति में और आज के समावेश में लोग मजबूर हो जाएंगे कि इन रिफॉर्मों को इंप्लीमेंट किया जाए, नहीं तो सोसाइटी की स्थिति और गड़बड़ होती जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं। छोटे मोटे राइट्स, छोटे मोटे धरना, और इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मुद्दा बढ़ता जाएगा, और अपोजिशन और सरकार में बरकरार बनी रहेगी। मीडिया अपनी टीआरपी के लिए इसको उछालती रहेगी, और सिविलियंस सोसाइटी जो है वो इसका फल भुगतती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। इट वाज प्रिविलेज टू हैव बोथ ऑफ यू ऑन आवर पैनल टुनाइट, एंड इट वाज रियली थॉट प्रोवोकिंग। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video,